Good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today I am going to explain class 10 science chapter number 6. The name of this chapter is life process. In my previous video I will explain to you internal structure of human body heart. Now today I am going to explain how it's work. When the left atrium relaxes, oxygenated blood from the lungs flows into it through the pulmonary vein. When it contracts, the left ventricle expands and the blood flows into it. Then the left ventricle contracts and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to all parts of the body. After circulating through all parts of the body, the deoxygenated blood enters the right atrium through the vena cava. When the right atrium contracts and the right ventricle expands and the blood flows into it, then the right ventricle contracts and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary arteries. In the lungs, carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed, and the oxygenated blood again enters the left atrium and the process repeats. Since blood flows through the heart twice in one cycle, it is called double circulation. बेटे एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द डबल सर्कुलेशन। तो जब यहाँ पे बताया गया है कि ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर यदि हार्ट में 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और इसका जो वर्किंग है उसको आपको पॉइंट्स के अंदर शो किया गया है, आपको इन पॉइंट्स के अंदर ही उसे अच्छी तरीके से लर्न करना है। यहाँ बताया गया है कि जब लेफ़्ट आर्टरियम रिलैक्स होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से फ्लो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, और then the left ventricle contract and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to all parts of the body. After circulating through all parts of the body, the deoxygenated blood enter the right atrium through the vena cava. तो 1 टाइम ये प्रोसेस होने के बाद में फिर जो सेकेंड टाइम है वो इसका उल्टा प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से 2 टाइम्स ये जो सर्कुलेशन होता है वो कंप्लीट होता है। Now, next cell lymph is a colorless fluid present in intercellular spaces. It is a form from the plasma which escapes from the capillaries. Lymph drains into lymphatic capillaries which forms lymph vessels and joins into large veins. Lymph transports digested fats and drains excess fluids from intercellular spaces back into the blood. It contains lymphocytes which kills germs and protect the body. यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम लिम्फ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लिम्फ क्या है बेटा? इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जो कि कलरलेस होता है उसे हम लिम्फ कहते हैं, और यह प्लाज्मा से मिलकर बना होता है which escapes from the capillaries and the lymph drains into a lymphatic capillaries which forms lymph vessels and joins into large veins. ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि लिम्फ जो है इस ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। जो लिम्फ होता है वो डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइटिस विच किल्स जर्म्स एंड द प्रोटेक्ट द बॉडी। इसके लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइटिस पाए जाते हैं जो कि जर्म्स को किल करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड, amphibians, reptiles and fishes. The heart of mammals, the birds have 4 chambers and the right and the left side of the heart is separated by a septum. This prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provides efficient supply of oxygen.
This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature. ये जो टॉपिक है इस पे जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए थे लास्ट ईयर, उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बर्ड के अंदर हार्ट पाया जाता है वो कैसा होता है और उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स क्यों नहीं होता। तो यहाँ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बर्ड के अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है एंड दे प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके अंदर जो तो बेटा ये जो सेप्टम होता है ये दोनों जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे मिक्स करने से रोकता है और इसकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होती रहती है। दिस इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। द हार्ट इज़ एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्स and allow some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature. Their body temperature is the same as the temperature of the surrounding. यदि हम लोग एम्फीबियंस के रेप्टाइल्स की बात करें तो उनमें मैमल्स के जैसा कुछ भी डिफ्रेंशिएशंस नहीं पाया जाता। इनके अंदर ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट जो होता है ब्लड है वो मिक्स होता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और जो इनका बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग की बॉडी टेम्परेचर के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। द हार्ट इन फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर, फिश के अंदर केवल 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, और जो गिल्स इसमें पाए जाते हैं फिश के अंदर उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ तक जो हमारा पार्ट था सर्कुलेशन का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास में जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की हम लोगों ने स्टडी करी। अब हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर, मिनरल्स टेक प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जो प्लांट के लिए ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है जाइलम फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम जो टिश्यू होते हैं ये रूट्स ने जो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करें हैं उसे पूरे प्लांट के अंदर ये सप्लाई करते हैं। इट्स कंसिस्ट द जाइलम वेसल्स एंड द ट्रैकियार्ड्स। इनके अंदर जाइलम वेसल और ट्रैकियार्ड्स पाए जाते हैं। वाटर इन द मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय द डिफ्यूजन, देन ड्यू टू द transpiration the suction force help in the upward movement of water and minerals. इनके अंदर ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी पाया जाता है। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट की जो लीफ है जो खाना बनाती है उसे फ्लोएम बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, और ये जो प्रोसेस है इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके पास में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसे बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे डिफ्यूजन के प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इन मल्टीसेलुलर द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटे उनके अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाए जाते हैं। नाउ इसमें फर्स्ट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। सो वी आर सीइंग हियर किडनी सिस्टम जिसे हम लोग एक्सक्रीशन सिस्टम भी कहते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम consists of a pair of kidney, a pair of ureters and urinary bladder and urethra.
ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास में 2 पेयर ऑफ किडनी होता है। यूरेथ्रा जो है वो इसका पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर इसका पार्ट है। तो इन सब से मिलकर ही एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो बनता है। और यहाँ पर 1 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है कि ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो यदि आपके पास में क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट्स ऑफ किडनी, तो आंसर इज नेफ्रॉन। नाउ इन दिस स्लाइड वी आर सीइंग हियर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन है किडनी का, वो भी आपको शो किया गया है। आप इसे अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी में, और बिना देखे आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करें आप इस डायग्राम की। यहाँ पर देखिए इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका एक्सप्लेनेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। हर एक नेफ्रॉन के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इट्स अ कंटेनिंग अ बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसमें बंडल ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। The Bowman's capsule leads into a tubular structure which joins into a collecting duct. The renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid along with excess water, salt, etc. यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर पुटअप हो रहा है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो किस रूप में होता है। तो जो ह्यूमन वेस्ट होता है बेटे वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और इसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर और सॉल्ट जो होते हैं बॉडी में जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, इसके थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं। इनटू द नेफ्रॉन इट फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड सॉल्ट विच द passes through the tubular structure into a collecting duct. The waste then passes through the ureters into the urinary bladder and is then set out through the urethra as urine, और यूरिन की फॉर्म के अंदर इससे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। The useful product like amino acid, glucose, salt, etc. are the reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the renal vein. तो यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी किया है। यहाँ पर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी किया। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है स्लाइड नंबर 18 के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाउ कुड यू राइट योर आंसर। एंड it's a B part, excretion in plant. In plants, the gaseous waste product produced during respiration, carbon dioxide and photosynthesis, oxygen are removed through the stomata. यदि हम उत्सर्जन की बात प्लांट्स के अंदर करें, एक्सक्रीशन सिस्टम की स्टडी यदि हम प्लांट्स में करें तो फर्स्ट जो गैसेस वेस्ट होते हैं उसे लीफ में पाए जाने वाले स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, और आफ्टर दिस प्रोसेस ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर दी जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। एक्सेस वाटर इज़ रिमूव थ्रू द स्टोमेटा। जो एक्सेस वाटर होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है बेटे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो जब हम लोगों ने अभी फूड की बात करी थी, प्लांट्स की जाइलम फ्लोएम की स्टडी करी थी, तो वो जो प्रोसेस है वो ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। और जब हम ये देखते हैं कि एक्सेस वाटर जो है वो प्लांट की स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन द लीव्स एंड रिमूव्ड व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्लांट अपनी लीफ के अंदर स्टोर कर लेता है और फिर उस लीफ को गिरा देता है। इसके बाद में
वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट पार्ट से अलग हो जाते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर कर दिए जाते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम्स एंड रेजिन आर स्टोर इन द ओल्ड जाइलम सेल्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि गम और रेजिन जो हैं वो पुरानी जो जाइलम कोशिका जो होती है उसके अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द रूट्स, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि रूट्स के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एटलीस्ट 3 मार्क्स में 1.5 मार्क्स में यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन मिलता है, यहाँ से पुटअप होता है, तो आप इससे की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। टुडे और चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और चैप्टर की ये जो 3rd और 4th पार्ट का जो वीडियो है, इसके साथ में ही 3rd और 4th पार्ट के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच बेटे।